Mr. Justice Sandeep Sharma ji, my elder brother Honorable Mr. Justice Satyam Vaidya ji, my elder brother Honorable Mr. Justice Vipin Negi ji, my elder brother Honorable Mr. Justice Rakesh Kansla ji, my younger brother Honorable Justice Ramesh Verma ji, my younger brother Learned Advocate General Anup Ratan ji, my younger brother Deputy Solicitor General of India Balram, my younger brother Haminder Chandel, President Himachal Pradesh High Court Bar Association, my elder brothers and my mentors, Shri Shravan Dogra ji, whom I can see here, learned senior advocate, Shri Dilip Sharma ji, learned senior advocate, Shri Ashok Sharma ji, learned senior advocate, all learned senior advocates present here, all my young friends here, and all the office holders of Adhivakta Parishad Himachal Pradesh. First of all, I like to thank you all for inviting me on this extremely important day, that is the Constitution Day of India. But before I start my lecture or I speak on the topic, I have to make one confession, and I'll narrate it by way of an incident. When Avinash came me and told me that I have to deliver the keynote address, I asked him कि मुझे क्यों आप पूछ रहे हैं? So I was told कि शायद Honorable Chief Justice साहब की व्यस्तता थी and Honorable Justice विवेक ठाकुर जी भी कहीं शायद उपलब्ध नहीं थे. मैंने इनसे पूछा तो वहाँ पे होगा कौन? इन्होंने कहा हम होंगे और कुछ एक यूनिवर्सिटी वगैरह के या कॉलेजेस के बच्चे होंगे. तो मैं उसी तरह से अपनी तैयारी करके आया हुआ था, लेकिन आज मेरी जो हालत है वो मैं आपको एक छोटी सी एक ना कहानी है, आपने शायद कभी सुनी नहीं होगी, थर्स्टी क्रो की, तो आपको सुना दूँगा. सो एक ना कौवा था, उसको बहुत प्यास लगी हुई थी, तो उसको एक घड़ा मिला, उस घड़े में पानी था और पानी बहुत नीचे था. उसको अचानक ध्यान आया कि यार ऐसा इंसिडेंट तो मेरे दादे के साथ भी हुआ है, और मेरे दद्दू ने क्या किया कि कंकर डाले, पानी ऊपर आया और उसने पानी पिया और प्यास बुझाई. उस कौवे ने भी कंकर डाले, लेकिन वो जो घड़ा था वो टूट गया और सारे पानी बह गया. तो कहावत है कि बहुत चालाकी भी अच्छी नहीं होती, तो आज मेरे साथ भी वही हुआ है. मुझे खुद भुगतना पड़ेगा कि बहुत चालाकी अच्छी नहीं होती है. एनीवेज, द टॉपिक ऑफ द डे इज आर्टिकल 14 एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी. आर्टिकल 14 टॉक्स ऑफ इक्वालिटी. मैं ये किताब लाया तो हूँ, लेकिन मैं इसको ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ एक दो चीज़ों को रेफर करूँगा. अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो अगर हम प्रियम्बल को देखें तो इक्वालिटी हमारे प्रियम्बल में है. Amongst other things, what our preamble says is that we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens inter alia equality of status and of opportunity. So equality एक ऐसा word है जो हमारे preamble में है. Now in this backdrop, I like to go through the provision of Article 14 of the Constitution of India. Article 14 कहता है, the state shall not deny to any person equality before law or equal protection of laws within the territory of India. हमारे संविधान की एक बड़ी खूबसूरती है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 सिटीजन ओरिएंटेड नहीं है. मैं फिर से पढ़ूंगा आर्टिकल 14, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इसी संदर्भ में अगर आप आर्टिकल 21 को भी एक बार इसके साथ पढ़ेंगे, आर्टिकल 21 सेज नो पर्सन, अगेन पर्सन, shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. लेकिन अगर आप बाकी फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे तो दे आर सिटीजन ओरिएंटेड. सो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 की जो प्रोटेक्शन है, whoever is on the soil of India, he is entitled to this fundamental right. Now the moot issue is कि हम इन राइट्स को फंडामेंटल राइट क्यों कहते हैं? Why are they not termed as constitutional rights? Because they form a part of the constitution. The answer is very simple कि ये जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल में डाली गई हैं, ये इतनी मूलभूत हैं, ये इतनी फंडामेंटल हैं कि इनके बिना एक प्राणी की तरह अस्तित्व ही मुमकिन नहीं है. Because these rights are extremely fundamental, therefore they have been termed as fundamental rights. They are akin to right to breathe, right to eat, right to live as a dignified human being. आज के दिन 26 नवंबर 1949 को we had adopted the Constitution of India और 26 जनवरी 1950 को we became a republic. जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फोर्स में आया. आर्टिकल 14 जैसा
26 नवंबर 1949 को था, आज की तारीख में भी वो बिल्कुल वैसा ही है। ना तो उसमें से एक शब्द हटाया गया है, ना देयर इज एनी एडिशन एटसेट्रा एज फार एज आर्टिकल 14 इज कंसर्न, बट देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज एज फार एज the understanding of article 14 is concerned vis-a-vis the fraternity of law, because all of us here who have gathered, we are students of law, इसलिए आर्टिकल 14 के बारे में मैं जो कुछ भी कहूँगा I'll speak strictly as a student of law. आर्टिकल 14 के मैं कुछ बातें ऐसी बोलूँगा जो आपको शायद बोरिंग भी लगे, क्योंकि हम ये सब बातें जानते हैं, लेकिन I just want to revisit आर्टिकल 14 with all of you today. आर्टिकल 14 में दो प्रिंसिपल्स एनश्राइंड है, दैट इट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इनमें से एक को एक नेगेटिव क्वालिटी कहा जाता है और एक को एक पॉजिटिव क्वालिटी कहा जाता है। जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो इसका बेसिक एक प्रिंसिपल ये है दैट इक्वल्स हैव टू बी ट्रीटेड अलाइक, और उसकी एक नेचुरल करोलरी ये है दैट अनइक्वल्स आर नॉट टू बी ट्रीटेड अलाइक। अगर हम अनइक्वल्स को भी इक्वल्स की तरह ट्रीट करने लग जाएं, अगर मुझे आप जिसकी हाइट 5-5.5 फीट है उसे आप 7 फीट के हाइट के आदमी के साथ कंपेयर करने लग जाएं, तो दैट विल आल्सो अमाउंट टू इनइक्वालिटी। इसलिए एज फार एज द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी इज कंसर्न, इट हैज टू बी इंट्रा इक्वल्स। जो इक्वल्स नहीं है उनमें इक्वालिटी का कंसेप्ट वैसे नहीं लगेगा जैसे इक्वल्स में लगना चाहिए। जब ये इशू सुप्रीम कोर्ट में शुरू में उठा तो सबसे एक प्रमुख जजमेंट, जो बेसिक जजमेंट इस इशू पे आई, दैट इज द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन अ जजमेंट व्हिच इज नोन एज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। उस जजमेंट में क्या, उस केस में क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल की सरकार ने एक स्पेशल एक्ट फोर्स में लाया, और उस स्पेशल एक्ट के तहत उन्होंने ये कहा कि हम स्पेशल कोर्ट बनाएंगे, और जिस केस को सरकार एक ऑर्डर के द्वारा निश्चित कर देगी कि ये केस स्पेशल कोर्ट द्वारा डिसाइड किया जाएगा, वो केस वो स्पेशल कोर्ट डिसाइड करेगा। जो केसेस उस स्पेशल कोर्ट में जाने थे उनको डिसाइड करने का जो प्रोसीजर था, इट वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स विज़-अ-वी अ पर्टिकुलर ट्रायल। ये एक्ट चैलेंज हुआ, और चैलेंज होकर ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस इशू पर निर्णय दिया तो उन्होंने जो बेसिक एक प्रिंसिपल आर्टिकल 14 का दिया, और जो प्रिंसिपल रिलेट करता है क्लासिफिकेशन का, उन्होंने ऑलमोस्ट पहली बार क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल को इस जजमेंट में ले डाउन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ने ये जो अधिनियम लाया है, ये जो कानून लाया है, इस कानून में कुछ खामियां हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट कन्फर्स द पावर अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट कि एक ही तरह के क्राइम किए हुए कुछ एक व्यक्तियों को तो यह स्पेशल कोर्ट के अधीन कर सकती है, लेकिन उसी क्राइम को किए हुए बाकी लोग जो हैं वो नॉर्मल प्रोसेस के तहत ही है जो वो ट्रायल करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो क्लासिफिकेशन इज परमिसिबल। आप अगर क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं स्पीडी ट्रायल्स वगैरह का, लेकिन क्लासिफिकेशन हैज टू बी अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और प्रिंसिपल ले डाउन किया, और वो प्रिंसिपल ये था कि जब भी आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो बेसिक प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन का रहेगा कि वो क्लासिफिकेशन एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के ऊपर बेस होगी, और जो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है इट मस्ट हैव सम नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट टू बी अचीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्लासिफिकेशन। और इस प्रिंसिपल को इन्वोक करके उन्होंने ये आर्टिकल 14 के तहत जो एक्ट था उसको सेट असाइड किया। अब आर्टिकल 14 का ये जो प्रिंसिपल है क्लासिफिकेशन का, इसको अगर हम सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो वी कैन पुट इट लाइक दिस। लेट अस टेक अ केस दैट टुमारो द आर्मी कम्स अप विद अ नोटिफिकेशन कि हमने कुछ एक आर्मी में जवान भर्ती करने हैं, और उन जवानों की हाइट जो है वो 6 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे बेस्ड है। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया ये है कि एक आदमी 6 फुट या उससे ऊपर होगा, और एक आदमी जो है वो 6 फुट या उससे कम होगा जो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या ये क्लासिफिकेशन जो आपने की है हाइट के ऊपर, ये लॉ में सस्टेनेबल है? तो हो सकता है फौज इसको सस्टेन करवा सके इस बेस के ऊपर कि हम जिस मकसद के लिए फौजियों को भर्ती कर रहे हैं उसमें हमें 6 फुट के हट्टे कट्टे नौजवान चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम एक क्लासिफिकेशन कर देते हैं
कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को माल रोड पे जाने देंगे जिनके बाल घुंघराले हैं, तो वो क्लासिफिकेशन भी एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे बेस्ड है। और वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है कि एक के बाल घुंघराले हैं, दूसरे के बाल घुंघराले नहीं है। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ये आर्टिकल 14 का टचस्टोन क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि इस इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का जो नेक्सस है माल रोड पे घूमना, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए जब आर्टिकल 14 का पहला टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन based on intelligible differentia and intelligible differentia should be having some nexus with the object to achieve, तो ये मापदंड जो है वो शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किए। इसके मैं आज आप लोगों के साथ जिक्र करूंगा कुछ एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का, जो आर्टिकल 14 का ग्राफ कैसे आगे बढ़ा उसके ऊपर है। उसके बाद मैं जो सेकंड जजमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की सन 1958 में आई। दिस वॉज इन द केस ऑफ रामकृष्ण डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर। भारत सरकार ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट बनाया 1952। इसके तहत ये एक पावर कन्फर की गई थी कि अगर सरकार चाहती तो वो कमीशन अपॉइंट कर सकती थी टू गो इनटू सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द मैटर। इस एक्ट के तहत एक कमीशन बैठाई गई सरकार ने, which was to go into the functioning of certain companies which were being run by the Dalmia group, जैसे डालमिया एयरवेज, डालमिया एविएशन एटसेट्रा। ये जो कमीशन बनाया गया, इस कमीशन को चैलेंज किया गया कि कंस्टिट्यूशन ऑफ दिस कमीशन वाज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रीजन कि ये कमेटी जो है ये एक पर्टिकुलर कंपनी ओरिएंटेड है, और जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट था उसका ध्येय यह नहीं था कि जो कमीशंस बैठती है, जो इंक्वायरीज बैठती है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप या एक पर्टिकुलर इंसान को लेकर के बैठती है। इस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने आगे आर्टिकल 14 को लेकर के बोला, तो आर्टिकल 14 ने बोला तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लासिफिकेशन, लेकिन वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन को फॉरबिड नहीं करती है, एंड लॉ में बी कॉन्स्टिट्यूशनल इवन दो इट रिलेट टू वन इंडिविजुअल। जो सुप्रीम कोर्ट ने पैरामीटर्स ले डाउन किए, वो पैरामीटर्स उन्होंने ये ले डाउन किए कि अगर कोई ऐसा स्टैट्यूट है जो आर्टिकल 14 से हिट होता है ऑन द ग्राउंड कि जिस पर्पस के लिए वो बनाया गया है ना तो वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन को मीट करता है ना नेक्सस को मीट करता है, तो वो स्टैट्यूट भी जाएगा और उसके तहत जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पास किए जाएंगे वो भी जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मान लो कोई ऐसा कानून है जो पर्सन स्पेसिफिक नहीं है या एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं बना गया है, लेकिन उसमें ऐसी गाइडलाइंस हैं जो ये डिटर्मिन करती है कि इसका ध्येय क्या है, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो अगर उस कानून का इस्तेमाल उस चीज़ से हटके किसी और चीज़ के लिए किया जाता है तो वह कानून अवैध नहीं होगा। इट विल नॉट वायलेट आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो पर्टिकुलर एक्ट उसके तहत किया जाएगा दैट ऑलवेज कैन बी गॉन इनटू बाय द कोर्ट अंडर आर्टिकल 14, और अगर कोर्ट को लगता है कि ये गलत है तो वो उसको आर्टिकल 14 में स्ट्रक डाउन कर सकती है ऑन दीज पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स। इसके बाद एक और जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की आई सन 1974 में, which is also considered a landmark as far as Article 14 is concerned, that is M. Chhagan Lal versus Greater Bombay Municipality। ये केस एक मैं और चीज़ अपने यंगस्टर्स को बताना चाहूँगा जो मेरे को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजय गरोल जी ने बताई थी, नाउ द ऑनरेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये जितनी भी जजमेंट्स 50s और 60s की हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे, दे वर आइदर डिलीवर्ड बाय 5 जजेस, 3 जजेस और 7 जजेस। अनलाइक द जजमेंट्स ऑफ दीज डेज जो 2 जजेस या 3 जजेस की जजमेंट है। कई बार हम लोगों को ये लगता है, बिकॉज नाउ अ डेज जिस हिसाब से जजमेंट्स आ रही हैं, वाई टू से अबाउट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमारे अपने हाई कोर्ट में ऐसा होता है कि मे बी आई डिलीवर अ जजमेंट, मेरे को पता ही नहीं है कि ऑनरेबल कोऑर्डिनेट बेंच ने कॉन्ट्रेरी जजमेंट दी हुई है, विच व्यू इज नॉट व्हाट आई हैव टेकन। देयर आर सो मेनी जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, लेकिन ये जो पुरानी जजमेंट्स हैं, अगर आप इन जजमेंट्स को देखोगे और अगर ये उसी इशू पे है जिस पे लेटेस्ट जजमेंट्स आई हुई हैं, देन यू विल फाइंड दैट ऑल दिस जजमेंट्स हैव बीन डिलीवर्ड बाय अ बेंच ऑफ 5, 7, 9, 11 और मोर। और लॉ बड़ा क्लियर है कि इन ऐसी सिचुएशन में कौन सी जजमेंट जो है वो वेट कैरी करती है जो ज़्यादा जजेस की स्ट्रेंथ की है। एनीवेज, जहाँ तक ये एम छगन लाल वाली जजमेंट है, इसमें इशू ये उठा कि बॉम्बे में देयर वर 2 एक्ट्स इन फोर्स। एक था बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट
और दूसरा था ग्रेटर बॉम्बे गवर्नमेंट एक्ट। इन एक्ट के तहत सरकार जो है वो जो जिन लोगों ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टीज पे अनऑथराइज कब्जा किया हुआ था, उनके तहत उन्होंने एविक्शन की प्रोसीडिंग्स चला दी। बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी के इस एक्ट को चैलेंज किया गया कुछ एक लोगों द्वारा, जो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में फिर से लैंड होता है। जो मूट इशू इस पर्टिकुलर केस में उठा वो ये उठा कि 3 प्रावधान है। एक तो है बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, दूसरा आ गया ग्रेटर बॉम्बे गवर्नमेंट एक्ट, और तीसरा आ गया नॉर्मल कानून, जिसके तहत एक आम आदमी की एविक्शन होती है। जो लोग कोर्ट पहुंचे उन्होंने कहा कि व्हेन देयर ऑलरेडी इज अ लॉ एग्जिस्टिंग, जिसके तहत एक जो अगर किसी ने एक अनऑथराइज कब्जा किया हुआ है तो उसको वहां से निकाला जा सकता है, तो ये जो एक्ट आपने नए लाए हैं जो उन राइट्स को कर्टेल करते हैं, जो राइट एक आदमी के ऊपर है, जो एक्ट ऑफ एविक्शन को सिविल कोर्ट्स में जाकर चैलेंज कर सकता है, आप उन राइट्स को नेगेट कर रहे हैं, एंड दिस वायलेट्स आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो एविक्शन प्रोसीडिंग्स चलाई गई थी अंडर द लोकल स्टैट्यूट्स, उनको अपहोल्ड किया, और सुप्रीम कोर्ट में इसने ये कहा कि जो रैशनल था बिहाइंड दिस पर्टिकुलर एक्ट, वो रैशनल आर्टिकल 14 से हिट नहीं होता है, क्योंकि रैशनल ये था कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो पब्लिक प्रेमिसेस वगैरह से एनक्रोचमेंट्स वगैरह हटा सके, ताकि पब्लिक प्रेमिसेस का यूज वो लार्जर पब्लिक गुड के लिए कर सके। जो ये इशू उठा कि एक तरफ तो सिविल कोर्ट्स हैं जो इन इश्यूज को डिसाइड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उन्हीं इश्यूज को डिसाइड करने के लिए पावर कन्फर कर रहे हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को, जो एक जुडिशियल ऑफिसर भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, वो जुडिशियल ऑफिसर नहीं है, लेकिन उसका ऑर्डर फिर अवेलेबल है बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज, जो एक जुडिशियल ऑफिसर है। इसलिए अगर पहला ऑफिसर जो है वो कुछ गलत करता है, उसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, दैट टू बाय वे ऑफ अ जुडिशियल ऑफिसर। अगर डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर के खिलाफ कोई रिवीजन और रिव्यू का प्रावधान नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेमेडी अंडर आर्टिकल 226 एंड अंडर आर्टिकल 227 इज अवेलेबल, और डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर जो है वो भी या तो पावर ऑफ सुप्रिंटेंडेंट में हाई कोर्ट देख सकता है, या अंडर सर्चुलरी जो है वो हाई कोर्ट जो है 226 में टेस्ट कर सकता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर आर्टिकल 14 का व्याख्यान किया और ये कहा कि जो ये 2 एक्ट बनाए गए थे वो आर्टिकल 14 के टचस्टोन को खरे उतरते हैं। इसके बाद जो जजमेंट आई, जो हम सब ने पढ़ी हुई है और जिसका हम रोज जिक्र भी करते हैं, दैट इज द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन ईपी रोयप्पा's केस। अब ईपी रोयप्पा के केस में भी मेरे सीनियर जहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो इशू क्या था? इशू कुछ नहीं था। इट वॉज अ सिंपल ट्रांसफर केस ऑफ एन IAS ऑफिसर। वो IAS ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट में, अल्टीमेटली दैट इशू लैंड्स अप इन द सुप्रीम कोर्ट, वेयर दैट IAS ऑफिसर वॉज ट्रांसफर्ड एंड पोस्टेड एज एन OST। एनीवेज, जो फैक्ट्स पे सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में डिसाइड किया वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया इक्वालिटी के साथ, आर्टिकल 14 के साथ, और वो था एलिमेंट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कुछ एक बातें बोली, और वो ये थी कि इक्वालिटी इज अ डायनेमिक कंसेप्ट विद मेनी डायमेंशन एंड एस्पेक्ट्स, and it cannot be crippled, cabined and confined to the traditional and doctrine limits. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक ऐसी लाइन बोली जो प्रॉबेबली हम भी कोट करते हैं और आप लोग भी जजेस के आगे आर्ग्यू करते हैं, that equality is antithetic to arbitrariness and equality and arbitrariness are sworn enemies. अब पहले जो प्रिंसिपल था आर्टिकल 14 का कि क्लासिफिकेशन का टेस्ट, अगर क्लासिफिकेशन का टेस्ट मीट नहीं होता है, क्लासिफिकेशन है और नेक्सस का टेस्ट मीट नहीं होता है, तो आर्टिकल 14 हिट होता है। अब उसके अलावा एक नया कंसेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया, विच वाज द कंसेप्ट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। और आर्बिट्रेरीनेस को सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में डिफाइन किया है कि आर्बिट्रेरीनेस का एक बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है। अगर एक सिचुएशन में एक ऐसा डिसीजन लिया जाता है जो एक प्रूडेंट आदमी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ना ले, तो वो आर्बिट्ररी डिसीजन कहलाएगा। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक और बहुत अच्छी बातें बोली।
और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट स्ट्राइक्स एट द आर्बिट्रेरीनेस इन स्टेट एक्शन एंड एंश्योर्स फेयरनेस एंड इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। इसके बाद जो एक सबसे मेजर लैंडमार्क जजमेंट आई जिसमें आर्टिकल 14 और ग्रो किया और प्रोग्रेस किया, दैट इज द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन मेनका गांधी केस। मेनका गांधी का केस हम सब जानते हैं, इट इज अ वेरी फेमस केस रिलेटिंग टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू ट्रैवल अब्रॉड। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को इकट्ठा पढ़ा और सुप्रीम कोर्ट ने इन सब जजमेंट्स में एक सबसे बड़ी बात जो बोली, इनफैक्ट जो ईपी रोयप्पा में भी बोली, क्योंकि ईपी रोयप्पा बेसिकली आर्टिकल 16 के साथ डील करता था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ये भी सिग्नल होता है ना, वैसे आई नॉट टेक मोर देन 5-7 मिनट्स। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में एक जो सब इन जजमेंट्स में एक जो सब मेजर बात बोली वो ये कहा कि even as far as article 15 is concerned, 19 is concerned, 21 is concerned, the basic source is article 14। इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल आर्टिकल 14 में एनश्राइन किया है वही आपके या स्टेट के सारे जो एक्ट्स है उसको टेस्ट करेगा, चाहे वो आर्टिकल 19 हो चाहे वो आर्टिकल 21 हो। मेनका गांधी के केस में भी इन्होंने अपनी सारी की सारी पुरानी जजमेंट्स को फिर से अंडरगो किया और मेनका गांधी के केस में एक और इशू उठा, क्योंकि अगर आप उस जजमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये वहाँ पे ये भी एक सवाल उठा कि आर्टिकल 14 अल्टीमेटली जब आप आर्टिकल 14 की वायलेशन की बात करते हैं तो आप किन प्रिंसिपल्स को देखेंगे? क्या आप क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल को देखेंगे या आप आर्बिट्ररीनेस के प्रिंसिपल को देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्ररीनेस का जो प्रिंसिपल है वो इतना ब्रॉड है कि वो अपने आप में जो क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल है उसको भी लेकर के चलता है। तो आर्टिकल 14 जो है वो आर्बिट्ररीनेस के प्रिंसिपल को भी अपने में एनश्राइन करके चलता है और जो क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल है उसको भी एनश्राइन करके चलता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात जो इस पर ड्वेल की, जो पहले भी उन्होंने कई जजमेंट में बोली थी, दैट वाज विद रिगार्ड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। उन्होंने कहा कि दो प्रिंसिपल्स हैं, वन कैन नॉट बी अ जज इन हिज ओन कॉज और दूसरा प्रिंसिपल है दैट वन कैन नॉट बी कंडेम्ड ऑन। अगर कोई ऐसा एक्ट, चाहे वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेती है जो किसी के राइट्स को अफेक्ट करती है और उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया जाता है, तो वो आर्टिकल 21 को तो करेगी वायलेट, चाहे जिस कानून के तहत एक्शन लिया गया है उसमें राइट ऑफ हियरिंग दिया गया हो या ना दिया गया हो, लेकिन वो इक्वालिटी के प्रिंसिपल को भी हिट करती है। तो अब आर्टिकल 14 का जो प्रिंसिपल था वो आर्टिकल 19 के साथ भी जोड़ा गया, आर्टिकल 21 के साथ भी जोड़ा गया और यही वो प्रिंसिपल्स हैं जिनको मद्देनजर रखकर आज जब भी हम आर्बिट्ररीनेस की बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, वायलेशन ऑफ द राइट्स की बात करते हैं, तो हम और मेरे जितने भी बड़े भाई और हमारे छोटे भाई भी अब तो यहाँ बैठे हैं, हम जो भी कुछ डिसाइड करते हैं इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए करते हैं। और जो आर्गूमेंट्स भी होती हैं, जितनी भी आर्गूमेंट्स होती हैं, आप लोग जितनी आर्गूमेंट्स करते हैं वो आर्गूमेंट्स भी इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रख के की जाती है। कुछ एक और जजमेंट्स का मैं जिक्र करूंगा आर्टिकल 14 के ऊपर, और अगली जजमेंट जिसको मैं आपके सामने जिसका जिक्र करूंगा दैट इज द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन नरगेश मिर्जा एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा। ये भी एक बहुत फेमस केस है जिसमें इशू था विद रिगार्ड टू द एज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ एयर होस्टेसेस। उस वक्त अनलाइक नाउ हिंदुस्तान में दो एयरलाइंस होती थी, एक एयर इंडिया और एक इंडियन एयरलाइंस। वहाँ पे जो एयर होस्टेसेस होती थी उनकी रिटायरमेंट की एज होती थी जो शुरू में थी वो थी 30 इयर्स या 4 इयर्स एज फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज और वेन एवर देयर वॉज द फर्स्ट प्रेगनेंसी। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो एयर होस्टेसेस की एज जो थी रिटायरमेंट की वो 35 इयर्स तक चली गई हुई थी और उसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर को यह राइट दिया गया था कि अगर वो चाहे तो वो रिटायरमेंट की एज को एनहेंस कर सकता था 10 साल तक। सुप्रीम कोर्ट ने एक और इसमें इशू डिसाइड किया दैट वाज विद रिगार्ड टू द इशू ऑफ इक्वालिटी बिटवीन एन एयर होस्टेस और मैं ये टर्म भूल रहा हूँ जो स्टूवर्ड्स होते हैं एरोप्लेन्स में, मेल स्टूवर्ड्स जो होते हैं, बिकॉज देयर एज ऑफ रिटायरमेंट वॉज काफ़ी अलग थी। इशू ये उठा कि एक एयर होस्टेस और एक, मैं सॉरी टू यूज द एक्सप्रेशन, एक मेल एयर होस्ट, अगर मैं उसको क्रूडली रखूँ
क्योंकि वो भी वही सर्विसेज देते हैं, तो वाई देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अ लेडी एंड अ मैन। सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली इस डिस्क्रिमिनेशन को डिस्टर्ब नहीं किया, रीजंस जजमेंट में दिए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक कंडीशंस को आर्बिट्ररी कहा अंडर आर्टिकल 14। उन्होंने पहली कंडीशन जिसको आर्बिट्ररी ठहराया वो कंडीशन थी that the services of a air hostess cannot be terminated on the ground of pregnancy। उन्होंने कहा कि अगर हम इस कंडीशन को अपहोल्ड करते हैं तो जो एक लेडी का राइट है वो ऑफ वुमनहुड, हम वो राइट छीन रहे हैं उससे। एक लेडी का जो माँ बनने का हक है, हम वो हक उससे ले रहे हैं। उन्होंने उस पर्टिकुलर जो क्लॉज था दैट एन एयर होस्टेस शैल बी लायबल टू बी रिटायर्ड इफ शी कंसीव, उसको उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज आर्बिट्ररी, इट इज हिट बाय आर्टिकल 14। दूसरा जो उन्होंने इस पर्टिकुलर जजमेंट में लॉ ले डाउन किया वो ये किया कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर था तब की एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का, उसका जो राइट था कि वो जब मन चाहे तो एक साल की एक्सटेंशन देकर के 10 साल तक ले जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज बैड। उन्होंने कहा कि हर किसी एयर होस्टेस को एक साल की एक्सटेंशन दी जाएगी टिल शी अटेन्स द एज ऑफ 45 प्रोवाइडेड वो मेडिकल फिट का सर्टिफिकेट लेकर के आती है। तो इसमें भी जो एलिमेंट था आर्बिट्ररीनेस का कि एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी है, ये एमडी साहब के मूड के ऊपर डिपेंड करेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वहां से हटाया। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट जिसका मैं आप लोगों के साथ जिक्र करना चाहूँगा, विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी, दैट इज द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। दिस इज ऑल्सो अ लैंडमार्क जजमेंट एज फार एज a country is concerned, for the reason that Honorable Supreme Court realized that as far as the ladies are concerned, with regard to their harassment and sexual exploitation in the workplaces is concerned, there was no law in place. Honorable Supreme Court ने कहा that each act of sexual harassment of a woman at a workplace results in the violation of her fundamental right under Article 14, 15 and 21 and also under Article 19(1)(g) of the Constitution of India. Female की dignity को at the workplace was equated by the Supreme Court vis-a-vis the right to equality enshrined under Article 14 of the Constitution of India. After equating this right of a lady of the gender with Article 14 of the Constitution of India, directions were issued which we all know and are in place as to what all has to be done by the governments to provide a mechanism to ensure that there was a dignified working place for all the ladies who were working in such like places. The next judgment which I will hurriedly refer to is the judgment of the Honorable Supreme Court in Shaira Bano versus Union of India, जो 3 तलाक वाला केस था। और इस जजमेंट ये जो दिस पर्टिकुलर जजमेंट में देयर आर वेरिएंट व्यूज विच हैव बीन टेकन बाय द ऑनरेबल जजेस बिकॉज सब्जेक्ट टू करेक्शन 5 जजेस का ये जो जजमेंट था ये 3/2 गया था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। लेकिन एक चीज़ के ऊपर जो कंसेंसस था सारे के सारे जजमेंट्स का, सारे जजेस का, वो मैं कुछ लाइनें आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। वो लाइनें हैं, लेजिस्लेशन वेदर प्लीनरी और सबऑर्डिनेट कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ मैनिफेस्ट आर्बिट्ररीनेस। Constitutional democracy of India cannot conceive of a legislation which is arbitrary. 1950 से लेकर 2025 तक अभी भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पार्लियामेंट को कोई ऐसी पावर कन्फर नहीं की गई है कि वो एक ऐसा स्टैट्यूट लेकर के आ सकती है जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे तो भी टिकेगा। हमारे संविधान के तहत द कोर्ट्स both under Article 226 and the Honorable Supreme Court under Article 32, they have been conferred the power कि अगर कोई भी कानून जो है वो आर्टिकल 14 को वायलेट करता है तो कोर्ट्स को ये पावर है कि वो उस पर्टिकुलर कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का मादा रखते हैं। इसके बाद एक और जजमेंट जो आई जिसकी भी काफ़ी रेलेवेंस है, जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, दैट इज द जजमेंट of the Supreme Court in Navtej Singh Johar versus Union of India. This is the judgment जहाँ पे सेक्शन 377 of IPC उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ एक बातें कही हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। A democratic constitution like ours is an organic and breathing document with senses which are very much alive to its surrounding.
सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये लिखा था, इसमें ये होल्ड किया कि सेक्शन 377 जो था सीआरपीसी का, उसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। और बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसमें, अगर मैं आपको कुछ मिनट में वो पढ़ के बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कहा था कि सेक्शन 376 ऑफ सीआरपीसी प्रोहिबिट्स कार्नल इंटरकोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसका ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट वाज टू सेफगार्ड चिल्ड्रन एंड विमेन। Supreme Court thereafter said that as far as the mechanism of safeguard of women and children is concerned, that was already there in section 375 of Indian Penal Code as well as POCSO. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पर contra, this section, that is section 377, has resulted in a distasteful and objectionable collateral effect where consensual act has been criminalized, which is preferred by a certain class of people. And on these basis, on the touchstone of Article 14, the Constitution held Section 377 of CRPC to be unconstitutional. इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की, दैट इज नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नालसा में ट्रांसजेंडर अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट with regard to the right of equality. Supreme Court has used the word hijra in this particular judgment of its. It starts with this particular word. Thereafter, what the Honorable Supreme Court has said in this particular judgment is that when a child is born, the child may either be born as a male or as a female. But there are certain children who are born maybe as male, but who have the traits of a female and vice versa also. Supreme Court ने इसके बाद इस पर्टिकुलर जजमेंट में बोला कि रूल ऑफ लॉ इज नॉट merely public order, but rule of law is social justice based on public order. Individual has a right to live in dignity, and on the basis of this interpretation of Article 14 of the Constitution of India, Honorable Supreme Court issued a mandamus that treat these people as third gender. और उसके बाद there are so many directions which have been passed by the Honorable Supreme Court of India. Lastly, I'll refer to another important judgment of the Honorable Supreme Court, which also deals with Article 14, though it was on a different concept altogether. That is the judgment of the Honorable Supreme Court in Indira Sahni's case. Indira Sahni का केस हम सबको पता है, it's a very very famous case, मंडल कमीशन का केस। 9 जजेस की ये जजमेंट थी जिसमें लॉ ले डाउन किया था कि लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल किस हदूद तक रिजर्वेशन वगैरह हो सकती हैं। आर्टिकल 14 के बारे में कुछ एक पंक्तियां जो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में लिखी है, आई जस्ट रीड इन माय, जैसे मैंने लिखा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कंटेम्पलेट्स मिनिमाइजिंग inequalities and eliminating inequalities. Equal protection clause prohibits the state from making unreasonable discrimination, but it requires state to afford substantial equal opportunities to those placed unequal. Equality for unequals is achieved by treating them as unequals. Therefore, in this particular judgment also, सुप्रीम कोर्ट ने वही प्रिंसिपल रीइटरेट किया जिसके साथ मैंने यहाँ पे आपसे बात करनी शुरू की थी कि आर्टिकल 14 का जो बेसिक अभिप्राय है वो अभिप्राय ये है दैट इक्वल्स आर टू बी ट्रीटेड अलाइक एंड अनइक्वल्स आर नॉट टू बी ट्रीटेड अलाइक। अगर हम अनइक्वल्स को भी उसी पैरामीटर पे आंकना शुरू कर देते हैं जिससे हम इक्वल्स को करेंगे तो दैट विल ऑल्सो वायलेट आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो दिस इज हाउ this particular article 14 has been seen by the Honorable Supreme Court of India, interpreted by the Honorable Supreme Court of India, and I have referred to some of the judgments which according to me are very very landmark as far as the interpretation of article 14 of the Constitution of India is concerned. I end my speech by saying that according to me, we all say that फाउंटेन ऑफ जस्टिस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उससे उसकी जो सबसे प्योर धारा है वो आर्टिकल 14 है। अगर आर्टिकल 14 ना होता तो हम जितनी भी आज की डेट पे हम डेवलपमेंट ऑफ लॉ की बात करते हैं शायद वो वहाँ पे वो उस हद तक ना पहुँची होती जिस हद तक वो पहुँची है, क्योंकि जहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की है आर्टिकल 21 को एक पर्टिकुलर जो पहले हम एक बड़ी मायोपिक उसको इंटरप्रिटेशन करते थे उस इंटरप्रिटेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है।
आर्टिकल 19 को की जो इंटरप्रिटेशन है उसको बढ़ाया गया है, वो सारी की सारी इंटरप्रिटेशन बेसिकली आर्टिकल 14 की इंटरप्रिटेशन के ऊपर ही निर्भर करती थी और निर्भर करती है। Thank you very much. I again thank the organizers for having invited me on this day, that is the Constitution Day of India. Thank you. Jai Hind.